At the outset, I am blessed to be in this part of Brahma Kumari Ashrama. I acknowledge with a high sense of gratitude for giving me this opportunity to be part of this seminar wherein we try to emphasize the role of media in promoting peace, trust and unity. ಮಾಧ್ಯಮದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರಮ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಶಿ ಹಸ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಟ್ಟದನ್ನೇ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಬಿಂಬಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮೇಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಶಿ ಹಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ very neatly. And it is also mentioned by Madam that we don't believe in God. Many of the people say they don't believe in God. Madam, Jada Shanatan Jan Ku Khatra. I think that is what is prevailing in the present scenario. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ನಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಣತನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಿ ನೀಡ್ ಒಳ್ಳೆತನ ಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ವಿ ನೀಡ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ವಿ ನೀಡ್ ಸಿನ್ಸಿಯರಿಟಿ, ವಿ ನೀಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪರ್ಟನೆಂಟ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ emphasize on the positive vibes, rather we go for negative vibes. Ladies and gentlemen, ನನಗೆ specifically Shantanu Bhai, who has come from Mount Abu, so madam has said me to speak in English. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. Ladies and gentlemen, we are living in this fascinating time of a change and a promise. Change is always for the betterment of the society. We are witnessing tremendous changes in the information industry, especially after the invention of a printing press in Europe during 16th century, and thereby the technological revolutions that has multiplied the role of mass media to inform, to educate and to reach the global society at large. And in fact, information and communication technology has been the greatest innovation of mankind, knowingly or unknowingly, intentionally or unintentionally. We all have been making use of the information technology in all aspects of our life. That is the beauty of a technology, and because of this technology, today we have, in addition to the print media, there is a domination of electronic media, domination of social media, which has incredible power of a democracy. And it is rightly pointed out by one of the greatest journalists, Malcolm Levin. He rightly said that media are the most powerful entity on the earth. They have the power to make the innocent guilty. The media has a power to make the innocent guilty and to make the guilty as innocent. So that is the power, because the media has a control over the minds of the society. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಂಬಿಸ್ಬೋದು.
ಓಕೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಒಳ್ಳೆದ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಫಂಡ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸಿ, information is a basic necessity of life. It is considered to be the fifth need of a human beings after air, water, food and shelter. And we the journalists are having a capacity and playing a role as the intermediate between the where the information is generated and where it has to be reached. So we have a greater role to play in this information arena, in this information revolution world. And it is said that a country is called as a rich country or a poor country not because of money, not because of a technology. It is because of the availability of abundance of information. So the country is said to be a rich country if it is having more information, more knowledge, not for any other thing. So that is the beauty of this media profession, and it is the responsibility of each one of us, especially media professionals, to ensure that the right information is communicated to the right user at the right time, at the right place, without having any adulteration, without having much of the exaggeration, and try to ensure that the positive vibes of the information, positive vibes of the things that are happening around the world needs to be communicated to the society, because they have the grip over the society. So this will ensure the peace, unity and trust. That is what we the press and media people have to play an important role. And it reminds me a great quote by the late Dr. APJ Kalam, wherein he said that learning gives creativity, creativity leads to thinking, thinking provides knowledge, and knowledge makes you great. And it is we the media professionals who are having each and every bit of information and knowledge, and it is our responsibility to ensure that the positive vibes, the positive information is being communicated and highlighted in our newspaper or electronic media rather than the negative things. Okay, and here, so I represent from the teaching fraternity of Gulbarga University, heading the Department of Journalism and Mass Communication. We try to impart the values of a life, the values of education, the values of media to our students, and we are offering a master degree in journalism and communication. We offer doctorate, PhD in journalism and mass communication, and few of them are already here occupying a very bigger role in this Kalyana Karnataka region and Karnataka. And unfortunately, at a master's level and at a degree, at a doctorate level, the journalism is available, but we need to integrate our bachelor's degree in journalism communication, that too in Kalyana Karnataka region. Namma Kalyana Karnataka region nalli degree level nalli ee ondu journalism and mass communication full fledged course illa, adakke prayatna nadita idave. Probably now, because we are all the teachers, what we teach, that will be learnt by our students. So we try our level best to ensure that our students, our scholars who have been taught ABCD of journalism, they follow right path, right wing. Let me make it very clear that see, journalism professionals, they do not have any religion. We are the ambassadors of our country to communicate the right information to the society. ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಐ ಸಿ ಮೇಡಮ್, ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 20 years. ನಾನು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೆನ್ ಹಿ ಮೇಕ್ಸ್ admission
to our master degree, or even the guest faculty, when they join, they have a preconceived idea. ನಾನು ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸೇರಿದವನು, ನಂದು ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನಂದು ಈ ಕ್ರೀಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಪ್ರೀಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಮೈ ಪ್ಯಾಷನ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ this particular political party and my passion is towards that political party. ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, we are all very preconceived. ನಾವು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವುದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ that we need to highlight. Unfortunately, we the media persons are going with a community, going with a religion, going with a particular parties, which is not fair. ಹೌದಲ್ರಿ? ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಫಸೈಸ್ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ವಿಷಯ. ಸಿ, ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ 2020, wherein it ensures to have value-based education. That value-based education is only the thing that will take us to create a very conducive environment of a peace, conducive environment of a trust. ಅದು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. So because of this new education policy, and we have to have a greater role to play in the society. And in fact, the press, of course, the press and media, ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ press and media, it's definitely, it's a very fast subject, very fast growing subject, very popular and cheapest way of acquiring knowledge. But only thing is, we have a greater role to play and ensure the trust and the peace prevails in the society. And in fact, this media is the fourth pillar of our democracy, and we have a greater role again to play. And when I see the present situation, very recently there was the India attacked Pakistan. So ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, our Indian Prime Minister or our Chief Minister, when they have been appreciated by the country abroad. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಥ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ರಾದರ್ ದೆನ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸು. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಪ್ರೊಬೆಬಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಾವು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಹೈಲೈಟೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಗೆಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಷ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಅವರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ and we are the top, means we have been the highest people, who have been appreciated by the country around. ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ so the things will work out and we can remain in quite peacefully. ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇದು ಒಂದು ಓಂ ಶಾಂತಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಡಿಯಾದವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಣ, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಣ. ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಾದರ್ ದನ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಆಫ್ ದ society. Sir, I just wish to inform that in journalism and mass communication, the new concept called peace journalism anta barta ide. I think there are different types of journalism. Now the latest is peace journalism. ಶಾಂತಿಯುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪ್ರೀಚ್ ಟು ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, that we are trying to preach to our scholars and even to the faculty, because we wanted a peace. Ultimately, after 40s, after 50s, life ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, I achieved everything here, what else is required, I need a peace. ಓಕೆ, ಆ ಪೀಸನ್ನು ನಾವು 50+ ಆದ್ಕೂಳೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲೇ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್, ಮೇ ಬಿ ಎ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಶರಣ ಬಸವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, we try to teach the moral and ethical values of journalism to our students and scholars. Only thing is they have to adopt and apply. So, to conclude,
let me tell you that the media is a most powerful medicine. It is the most powerful medicine, and if this medicine is used properly, it can heal many ills. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಗ ಇದ್ರೂ this can cure. But if the media is misused, then it can become a poison. That keeping that particular thing in mind, so let me conclude saying that we are all very fortunate that the God has given a bread and a butter. There are so many unemployed youths who have nothing, struggling a lot, and we, the people of media and the press, have a greater responsibility to ensure that the peace prevails, the trust prevails among the society, because we are the ambassadors of the society for their well-being. ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ, and I once again acknowledge with a high sense of gratitude to all the divine souls of this Brahma Kumari for giving me this opportunity to be part of this noble seminar. Thank you very much. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜನರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದು ಈ ಮೀಡಿಯಾ ವಿಭಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಏನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆಗು ಹೋಗುವ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದತ್ತ ಒಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ. पर्वत पावन भूमि तमो भूमि तपोभूमि तपोभूमि आदंतः पवित्र भूमि आदंतः। इसलिए कम्युनिकेशन के लिए एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी है ना। एक वर्बल कम्युनिकेशन, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपके चेहरे से, आपके नैनों से, आपके दृष्टि से, आपके फेस से भी पता चलता है, क्योंकि फेस इज द इंडेक्स ऑफ आवर माइंड। हमारे मन का जो दर्पण होता है वो चेहरा होता है। हम बिना बोले भी इशारे से सब समझ सकते हैं। दैट इज ऑल्सो मीडिया, नॉन वर्बल, बिना बोले। ठीक है, तो इसीलिए सब हमारे भाइयों और बहनों, कितने अच्छा है आज का प्रोग्राम। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के 20 विंग है, 20 विंग्स है, मीडिया विंग इज वन ऑफ देम। आज ये जो बहुत बड़ा अमृत सरोवर इस गुलबर्गा सब जोन के तरफ से एक बड़ा बना हुआ है, यहाँ पर हम सब एकत्रित हुए हैं विचार लेन देन के लिए। ये जो प्रोग्राम सिर्फ वन साइडेड नहीं है, लास्ट में भी आप अपना व्यूज भी दे सकते हैं। मैं शिवलीला बहन जी से निवेदन करूंगा कि लास्ट में वो सभी का, जिनको जो अपने टॉपिक पर या कोई भी रिलेटेड अपना व्यूज देना चाहते हैं या कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। हमारे मंच पर आसीन विजया दीदी जी, डॉक्टर प्रेम भाई जी, हमारे डॉक्टर सुरेश भाई, भवानी सिंह भाई, सुनीता दीदी, सरला दीदी, हमारे अन्य वक्तागण, रागिणी बहन, शिवलीला बहन, किशोरी बहन एवं हमारे मीडिया साथी। आज का टॉपिक
बहुत उच्च कोटि के, जो मीडिया का क्या रोल हो सकता है समाज में शांति, एकता, यूनिटी और ट्रस्ट, विश्वास को बनाए रखना। उसमें दो प्रकार की बातें होती है। एक तो मीडिया के अंदर भी एक यूनिटी होना जरूरी है। अगर हम समाज में वही मिशनरी जीन लाना चाहते हैं जो आज़ादी से पहले था, उसके बाद भी कुछ साल तक रहा, जितने भी रिवॉल्यूशन हुए, जितने भी ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, अन्य कोई भी, उसमें मीडिया का हमेशा ही एक बहुत बड़ा रोल रहा। चाहे कोरोना काल में आपने देखा, जो सारी दुनिया हाहाकार जहाँ बचा हुआ था, सब त्राही त्राही कर रहे थे, हे भगवान, हे परमात्मा को रक्षा करो, तो मीडिया फ्रंट लाइनर बन के जितना बड़ा सारे विश्व में एक एजुकेट किया, सबको इन्फॉर्मेशन दिया, वो एक काबिल तारीफ है। और कई, मैं समझता हूँ मोर देन 1000, अगर मैं थोड़ी सी गलत ना हूँ तो आपको अगर मालूम हो कि मीडिया के जो फ्रंट लाइनर थे, मोर देन 1000 मीडिया कर्मियों ने अपना देह त्याग किए, इसी में कोरोना के काल में समा गए। आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, फिगर एक्यूरेट ना भी हो, लेकिन मुझे जितना मालूम है 1000 से अधिक सिर्फ इंडिया में मीडिया कर्मियों ने ये जो कोरोना काल में सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के, लोगों की जान बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगा दी। इसको कहते हैं मीडिया, जो अपने स्वार्थ को त्याग करके दूसरों की सेवा में लग जाता है। महात्मा बापू जी के जो शब्द है, हम यहाँ उद्धृत करना चाहेंगे कि मीडिया अर्थात सेवा, सेवा और सेवा, और कुछ नहीं। न कुछ से कुछ मांग सकता है, न किसी के टेम्पटेशन में, किसी के प्रलोभन में नहीं आ सकता। कोई कुछ पैसा, धन, संपत्ति कुछ भी दे दे, लेकिन मीडिया मतलब न्यूट्रल। जैसे सारों ने बोला, मीडिया नहीं कि किसी धर्म विशेष को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करे, वो मीडिया नहीं है, वो बाइस्ड है। तो बाइस्ड वाला चीज़ को, इसीलिए इसमें लिखा है कि हमारे मीडिया के अंदर यूनिटी नहीं है। एक न्यूज़पेपर दूसरे न्यूज़पेपर वाले से बात नहीं करता है, एक टीवी चैनल वाला दूसरे टीवी चैनल में, एक शहर में बाइफरकेशन है, कोई किसी से मिलना पसंद नहीं करता, क्योंकि मटेरियलिज्म का बोलबाला है, हमको किसी से किसी कुछ लेना देना नहीं। इसीलिए यूनिटी, अगर हमारे भारत की एकता, अखंडता को बनाए रखना है, जो आज का टॉपिक का शीर्षक है कि हमारे भारत, क्योंकि मीडिया भारत में ही था। महाभारत काल में अगर देखेंगे तो भगवान ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे वो है नारद जी थे। हम नारद जयंती मनाते हैं, मीडिया वाले मनाते हैं। इज इट ओके? मैं यही सच बोल रहा हूँ। तब जब नारद जयंती मनाते हैं और नारद जी से हम प्रेरणा लेते हैं कि एक सत्यता की, क्योंकि नारद जी सत्य के साथ खड़े थे, इसीलिए हम मीडिया वाले बिना सत्यता के कोई न्यूज़ नहीं दे सकते। वर्तमान समय जो भी चल रहा है सब गलत हो रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का तो कोई माँ बाप है ही नहीं, मन में जो आता है करते हैं। फेक न्यूज़ कहो, मिस इन्फॉर्मेशन न्यूज़ कहो, डिस इन्फॉर्मेशन कहो, रंग, जितने गलत समाचार, इमेजिनरी सारे समाचार सब देते हैं। तो इसीलिए हमारे जो विश्वास, हमारे जो एकता, हमारी जो शांति, भाईचारा, हार्मोनी, क्योंकि हमारे रिलीजियस, चाहे पॉलिटिकल, चाहे समाज के ऊंच नीच सबके जो झगड़े चल रहे हैं, उसको समाधान एक ही मीडिया कर सकता है। इसीलिए आप सबको इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए बुलाया गया। सिर्फ नारद जी हमारे एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन हमारे सामने एक और एग्जाम्पल है जो टीवी जर्नलिज्म के जो हमारे पुरोधा वो थे संजय जी। संजय जी को नाम सुना होगा। महाभारत काल के सारे समाचार वो दिव्य दृष्टि प्राप्त करके धृतराष्ट्र जी को समझाते सुनाते थे। जब तो ये टीवी जर्नलिज्म है,
कहीं बिल्कुल त्रिकाल दर्शन बना, जिसको दिव्य नेत्र खुला हुआ था वो देख पाते थे दूर में बैठ कर के कुछ। लेकिन मीडिया अभी जो पाश्चात्य मीडिया, अभी जो वेस्टर्न मीडिया, वो कहता है कि हम मीडिया का जन्मदाता है। वो रॉन्ग है। मीडिया का जन्मदाता तो भारत ही है, और हमारे और भी मनीषी कई आए, गांधी जी आए, तिलक जी आए, दूसरे भी आए, सब राम मोहन राय भी आए, बहुत सब कुछ परिवर्तन किया जो मीडिया के लिए बहुत काम किए। उसके बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे मीडिया वाले लोग आए। वर्तमान समय जो भी परिवर्तन हो रहा है, मीडिया का अस्तित्व अभी खतरे में है। नेगेटिविटी का बोलबाला है, पॉजिटिव न्यूज वैल्यू कुछ नहीं है। तो इसी कारण से सेंसेशनलिज्म, सनसनीखेज समाचार के लिए हम जो नया ताज़ा समाचार दे उसको कहते हैं मीडिया। लेकिन इसका मतलब नहीं, दीदी विजया दीदी क्या सुना रही थी कि जो गलत न्यूज, जिसका कोई रेप, मर्डर, ये वो सारे समाचार फ्रंट पेज में भर जाता पूरा। हाँ, नेगेटिव न्यूज माना कोई गलत होता है, प्लेन क्रैश हुआ, उसका न्यूज़ तो देना चाहिए, वो चलो ठीक है, क्योंकि वो क्योंकि नया कुछ हो तो लोगों को पता तो रहे। मीडिया अगर कहेगा हम कोई भी समाचार नहीं देंगे, सिर्फ पॉजिटिव देंगे, जो अच्छे वो होता है वही देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको हम हाईलाइट तो करते हैं, लेकिन उसको सोच समझ करके, कोई किसी को रेप हो गया, आप उसको ज़्यादा हाईलाइट करने से क्या होगा? इंटरव्यू लेंगे क्या जाके जिस लड़की के साथ गलत हुआ है? नहीं। तो कहने का मतलब कि फ्रंट पेज में भी अच्छे समाचार आने से लोग उसको ढंग से, जो प्रिंट मीडिया जो कार्य कर रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कार्य कर रहा है। तो इसीलिए धीरे धीरे हम लोग, हमारा जो मैसेज क्या हम दे रहे हैं उसके तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। क्या ये मैसेज पब्लिक के फायदे के लिए, या परोपकार के लिए, विश्व कल्याण के लिए, और हमारे शांति के लिए? क्योंकि गवर्नमेंट का, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के और गवर्नमेंट का भी गाइडलाइन से समय प्रति समय जारी होता है कि आप ऐसे समाचार नहीं दीजिए जो समाज में झगड़ा, फसाद और दंगा हो जाए। तो इसी बात को लेकर के हमारे इसमें 3 प्रकार के वैल्यूज के लिए हमारे मीडिया विंग बताते हैं कि अभी वर्तमान जो चल रहा है वो मटेरियल वैल्यूज, भौतिक मूल्य, भौतिक बात, जो पैसे से तोला जाता हर चीज़ को। हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बिना एडवर्टाइजमेंट के होता नहीं, लेकिन वो सारे पैसे के लिए। कोई किसी पॉलिटिकल का, कुछ पॉलिटिशियंस का कोई भी समाचार हम पहले हाईलाइट करते हैं। कोई एक्टर एक्ट्रेस, एक्टर के बेटे का शादी हुआ, कोई नेता के बेटी के शादी हुए, उसमें कौन से प्रकार की भोजन खिलाया जाएगा वो हाईलाइट होगा पहले। हाँ, उनके कितना क्या होगा। कहने का मतलब कि कितने दहेज दे रहे हैं, कितने क्या करें, करोड़ों रुपए खर्चा करें, सब कुछ हम हाईलाइट करें, उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं हम लोग। क्या जरूरत है? आप उसको वो कहते हैं, उसको कहते हैं हम नेगेटिव न्यूज। आप परोपकार के लिए कोई अच्छे कार्य हो रहा है उसको अगर हम देते हैं तो हमारे समाज में शांति, एकता और भाईचारा और ट्रस्ट फैलेगा। इसी बात को लेकर के पहले जो मिशनरीजिम था उसको अभी धीरे धीरे खत्म होके हम लोग एक प्रकार के, क्या बोलते हैं उसको, कमर्शियलिज्म की तरफ जा रहे हैं, या कमीशन के तरफ जा रहे हैं। मीडिया मिशन नहीं रहा, कमीशन जैसे हो गया। तो इतना पुराना, इसीलिए मीडिया का भारतीयकरण होना चाहिए। हाँ, पश्चिम सभ्यता के चक्कर में जा करके हम मटेरियलिस्टिक जिम को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, इसीलिए ये इसकी ज़रूरत है। हमारे जो मीडिया विंग इस कार्य के लिए लगातार सेवा भाव से काम कर रहा है। 1980 दशक में मीडिया विंग की स्थापना हुई, जिसका एम ऑब्जेक्ट ये है टू प्रैक्टिस एंड प्रमोट वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म, मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता को प्रमोट करना, ये मीडिया विंग के लक्ष्य है। बाय द मीडिया पर्सन इन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल एंड प्रमोशनल मीडिया। प्रमोशनल माना हमारे जो PRO, एडवर्टाइजमेंट आदि, 4 प्रकार के मेन मीडिया। दूसरा सेकंड पॉइंट है टू इंस्पायर मीडिया प्रोफेशनल्स टू टेक अप द चैलेंजेस ऑफ प्रमोटिंग पॉजिटिव वैल्यूज।
in their enterprises and of avoiding negativity in media coverage. Number 3, to encourage media responsibility in promoting religious harmony, क्योंकि हमारे देश में रिलीजियस हारमोनी तो रहता है, डिसहारमोनी हमेशा ही रहता है. टू रिलीजियस हारमोनी, नेशनल कैरेक्टर, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वीक, विक्टिमाइज्ड एंड वॉइसलेस मिलियन, जो बेसहारा है, जो गरीब है, जो अनाथ है, जो गरीब तबके के लोग हैं, बीपीएल वाले, और जिनको अन्याय जिसके साथ हो रहा है, जिसको न्याय नहीं मिलता है, जिनको रोटी कपड़ा मकान रहने के लिए खाने के लिए नहीं मिल रहा, एजुकेशन स्वास्थ्य आदि बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उनके लिए मीडिया सामने होता है. इसलिए मीडिया इज द सबसे ज़्यादा फेथफुल है. कोई कुछ भी नहीं मिलेगा मीडिया के तरफ सबका ध्यान जाते, मीडिया हमारी बात सुनेगा और गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा. जो बात कोई नहीं कर सकता वो मीडिया ही कर सकता है. और जो चेक बैलेंस जो मीडिया करता है वो है हमारे जो जुडिशियरी, हमारे जो जुडिशियरी में आजकल करप्शन शुरू हो गया है. आपने सुना होगा कोई जज के बारे में, नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि हमारा ये तो स्पिरिचुअल संस्था है, स्पिरिचुअल एजुकेशन. और हमारे पॉलिटिकल तो है ही, पॉलिटिशियंस जो हमारे जो कानून बनाते हैं, हाँ, जिनको बोलते हैं विधानपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, और चौथा हमारा फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है ये जो अपने मीडिया. चौथा है टू डिस्करेज मीडिया माल प्रैक्टिसेस ट्रिगर्ड बाय मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, जो सोशल मीडिया का टॉपिक है ज़्यादा, फेक न्यूज, invasion of privacy, indulgence in sensationalism, yellow journalism and giving undue coverage to violence, obscenity and vulgarity. ये मेन बातों को लेकर के हम एक ऐसा मीडिया के ग्रुप बनाया है कि जो मूल्यों को जो स्थापना के लिए प्रोत्साहित, जो मूल्यों को बढ़ावा देते हैं, शांति सद्भावना को बढ़ावा देते हैं, जो प्योर खुद ही पवित्र है, जिनके जो चरित्रवान है, जो समाज के सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे मीडिया विंग, ऐसे एक जर्नलिस्ट, ऐसे ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं जो समाज के लिए, समाज की भलाई के लिए खुद ही अपने जीवन को डेडिकेट करें, और जिनका खान पान शुद्ध हो, जो एक सच्चे इंसान. हम ये नहीं कहते हैं कोई मीडिया वाले कोई साधु बाबा बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये अच्छे इंसान बन करके निष्पक्ष, बिना कोई भेदभाव के, किसी से कोई लोभ लालच के, एक सच्चा इंसान बन करके, जैसे देश सेवा के लिए हमने कितना सहयोग किया, हमारा देश आज़ाद हुआ, इसी मिशनरी जेल के लेकर के हमारे देश अभी भी आज़ाद नहीं है. कई प्रकार के टेंशन है, कई प्रकार के बंडेज हैं, कई प्रकार के सुपरस्टिशन से, कई अंधविश्वास है, तो कई प्रकार की नेगेटिविटी है, लोभ लालच सब कुछ है. उसको हमको स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हो, एजुकेशन क्षेत्र में भी हो, हर क्षेत्र में हमारा डाउनफॉल है, वैल्यूज़ का डाउन है. डाउनफॉल होने के कारण आप सबका, हम आप सबसे यही निवेदन करते हैं, हे भाइयों और बहनों, आप जागो, आगे बढ़ो, और ये देश सेवा के लिए आप अपने जो वैल्यूज़ उसको प्रमोट करो. और सिर्फ सूचना देना इतना ही काम नहीं, लेकिन जैसे हमारे भाई साहब ने बताया, डॉक्टर सुरेश जी, कि एम्बेसडर ऑफ पीस हम बने. बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत पसंद है. एम्बेसडर ऑफ पीस, एम्बेसडर ऑफ यूनिटी, एम्बेसडर ऑफ ट्रस्ट, एम्बेसडर ऑफ हारमोनी. हमें 4 पॉइंट अगर नोट करेंगे कि हम इसके दूत हैं, एम्बेसडर है देश सेवा के लिए. हमको विदेश सभ्यता को देखना नहीं, हम इंडिया ही से सब कुछ है. तो इसीलिए एम्बेसडर ऑफ पीस, एम्बेसडर ऑफ हारमोनी, एम्बेसडर ऑफ यूनिटी एंड एम्बेसडर ऑफ ट्रस्ट. लास्ट में 2 लाइन बोल के मैं अपना वचन समाप्त करूँगा. भाइयों और बहनों, आप सबको अगर ये मिल गया है तो हाथ खड़ा करें. ऐसे एक फोल्डर है, 2 फोल्डर मिला होगा, एक मीडिया विंग का एम ऑब्जेक्ट वाला, एक ये वाला मिला है सबको. नहीं तो हमारे वो बाहर काउंटर है, वहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे. अगर हमारे कोई अपने यहाँ वॉलंटियर्स हैं, उनसे निवेदन करूँगा सभी मीडिया वालों को ये फोल्डर जरूर दें. भाई साहब, आप सबको
नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस 2025 में समाज में शांति, एकता, विश्वास को बढ़ावा देने में मीडिया की भूमिका पर त्रिदिवसीय 3 दिन के लिए जाना आना मिला के 5-6 दिन हो जाता है। आप आइए और आपके मिसेस या फैमिली मेम्बर से, थोड़े बड़े बच्चे छोटे बच्चे नहीं आ सकते हैं, उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जो भी लोकल ब्रांच है, यहाँ जैसे रिट्रीट सेंटर है या सत्य तीर्थ हमारे वहाँ पर है शहर के अंदर, तो वहाँ पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप इसमें अलग अलग वर्कशॉप है, टॉपिक सेमिनार है, डायलॉग है, 1-to-1 इंटरव्यू है, और आप उसमें भाग लेंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा। और सारे देश विदेश, नेपाल और अन्य देशों से भी पत्रकार इकट्ठे होंगे। 1500 पत्रकार माउंट आबू के नीचे पास में जो आबू रोड है, हमारे बड़ा कैंपस है, उसमें आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं और आप जरूर आइएगा। ओम शांति। आदरणीय मंचासीन, हमारे प्यारे सभा में उपस्थित दैवी भाई और बहनें, बदलते हुए समय में, बदलते हुए समाज में मीडिया एक शक्तिशाली समाज का निर्माण कर रहा है और शक्तिशाली समाज का निर्माण करने के लिए खुद को शक्तिशाली बनाना अति आवश्यक है। और ये शक्ति कहाँ से आती है? ज्ञान से, योग से, ध्यान से प्राप्त होती है। राजयोगा मेडिटेशन न केवल एक मेडिटेशन है, ये एक लाइफस्टाइल है, माना योगी जीवन। योग लगाने वाले योगी नहीं, योग को हमारे जीवन के अंदर धारण करने वाले योगी। प्रैक्टिकल में वो मेडिटेशन हमारे जीवन में आ जाए। सिंपल भाषा में समझा दे तो सब कुछ करना है, सारे कर्म करते हुए अपने मन के स्थिति को एक प्योर स्थिति में, एक फोकस स्टेट में रख के कर्म करना है। और इसको ही राजयोग मेडिटेशन कहा जाता है, इसको ही कर्म योग भी कहा जाता है। इस मेडिटेशन के 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप सेल्फ रियलाइजेशन और सेकंड स्टेप गॉड्स रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन माना अपने आप को आत्मा समझना है, आत्मा निश्चय करना है। शरीर भिन्न है, आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है। और सेकंड स्टेप है गॉड्स रियलाइजेशन। जब हम अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा समझते हैं, परमात्मा से कनेक्ट होना। क्या होता है? जैसे आत्मा लाइट है, परमात्मा भी एक लाइट है, सुप्रीम लाइट है। जैसे सूरज से किरणें निकलती है, ऐसे ज्ञान सूर्य परमात्मा से ज्ञान की, शक्तियों की, गुणों की किरणें निकलती है। और जब हम अपने आप को आत्मा समझकर वो किरणों को अब्जॉर्ब करते हैं, हमारे अंदर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता अंदर आ जाती है, हमें महसूस होती है। और यही राजयोगा मेडिटेशन है। कई पूछते हैं कौन से आसन में ये मेडिटेशन करें? आप कहीं कैसे भी बैठ के कर सकते हैं। रिलैक्स स्टेट में अपने बॉडी को रखें और मन को स्थित करना है उस पॉइंट ऑफ लाइट में। सारे कर्म करते हुए भी ये आप मेडिटेशन कर सकते हैं, पर स्टार्टिंग अगर हम इनिशियल स्टेज में हैं तो बैठे हुए करना प्रिफर्ड है। जब हम इसमें हैबिचुएटेड हो जाते हैं तो आप चलते फिरते, उठते, बैठते, कोई भी कर्म करते, अपने अंदर की आत्मा में जो बुद्धि है उसको परमात्मा में स्थित कराना है। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले आप आंखें बंद करिए, फिर बाद में ग्रेजुअली प्रैक्टिस होने के बाद आप आंखें खुली रख के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ वक्त के लिए हम ये मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। सारे रिलैक्स्ड होकर बैठे, आंखें बंद करें। ओम शांति। मैं पॉइंट ऑफ लाइट चमकता हुआ सितारा हूँ। प्रकृति के बीच में उपस्थित हूँ, अपने आत्मिक स्वरूप को चमकता हुआ
चारों की ओर से